8051। सो कल कुछ ऐसा आइडिया दिया था मैंने कि आपका बॉड रेट क्या होता है, बिट रेट क्या होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेस इन per second is called as a baud. On the other hand, how many bits you are sending per second is called as a bit rate. So if I using only the two wire lines, this baud rate and bit rates are used as interchangeably. So uh, first of all, we will see that our purpose is that how the serial communication is possible in the 8051 microcontroller. So yesterday I given the one example is that, for example, if you are using the microprocessor, so to send the data serially, you have to use the some external interface. This external interface is normally called as a UART. It's called as a universal synchronous receiver and transmitter. The purpose of this that is it will convert that one into parallel to serial to transmit on this transmission line. और on the other hand, we can say कि ये इसको इसके कंपेटिबल बना रहा है। साथ में ये क्या करता है कि बॉड रेट भी करता है, क्योंकि एक्चुअली जो आप यहाँ पर जो बीट भेज रहे हो ना, ये जो बीट है, ये जो है, मतलब ये कोई ना कोई, जैसे 1 गया, उसके बाद 0 गया, फिर उसके बाद 0 गया, फिर 0 गया, जाएगा तो ये सीरियली, पर अल्टीमेटली ये किसी न किसी, मतलब अपन कहेंगे किसी बॉट के साथ जाएगा। वो बॉट कैसे जनरेट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बॉट कैसे जनरेट करेंगे। सो बॉट जनरेट करने के लिए, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये जो 8051 है, ये 8051 में जो यूआरटी होता है वो नॉर्मली इसके साथ ही ऑन चिप होता है। अभी यूआरटी क्या करता है, ये यूआरटी यहाँ पर दो फंक्शन करता है। पहली चीज, दिस यूआरटी, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर क्रिस्टल, this is your crystal oscillator. Okay, and here after this, you know that the timer section will try to divide this frequency by 12. Okay, so it will be divided by 12. So it's a pure example. If I am using 11.07 megahertz here by the crystal, the timer will divide it to by 12. So it will be 921 point something 7 kilohertz. Am I right for that? ऐसे बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको। चेक करो टाइमर फ्रीक्वेंसी। यस सर, 921। यस सर, इतनी है। Okay. Now next point is that this frequency is again divided by a UART, because you can think about that inside the chip. This is divided by the timer. अब आप कहेंगे सर आप सीरियल कम्युनिकेशन में टाइमर बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या रोल होता है। Now again UART will divide that frequency. For example, this is your UART. So UART will divide that frequency by 32. Okay, so resultant frequency that is available on here is, we can say, is 28800 hertz. Okay, so actually why we are using this timer section, the question is here, why it is so. Okay, actually the concept of baud rate is actually generated by the timer 1. So we can say this timer 1 is actually hardwired with UART. Okay, so we can see मैंने यहाँ पे बताया, आप ध्यान रखना ये टाइमर 1 ही इसके साथ रहता है। तो टाइमर 1, अब जब टाइमर 1 की जब बात हो रही है तो एक्चुअली टाइमर 1 क्या कर रहा है, ये बॉड रेट जनरेट कर रहा है। अब बॉड रेट कैसे जनरेट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आई, तो यूआरटी की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो है मेरी पे यहाँ पर 2800 है ना, 28800 hertz. So this is actually generated by the UART. Now, for example, the standard baud rate. What is the standard baud rate? So, for example, you are having some microcontroller. This is your microcontroller or microprocessor, and suppose you want to send the data or receiving the data some PC. So there is some standard baud rate is set. For example, some serial communication is going on there. So some standard baud rate, we can say, लाइक दैट आपने कभी किया भी होगा या अभी कभी करेंगे आप, आर्डिनो के साथ हम करते हैं कई बार ये, तो ये कुछ स्टैंडर्ड बॉड रेट है। मतलब ये अगर मैं कह रहा हूँ तो ये इसको बोलेंगे 110 बॉड
per second, and this is 300 like that. The unit will go like this one, and this is 600. Another one is 1200, 2400, and then 4800. इसका डबल हो जाएगा 9600, and then another one is 19200. Okay, now first thing is that how you can generate the baud rate. Question is that how we can generate. So first our focus is that for example, if suppose your target is that you have to generate the baud rate of 96. The question is given, generate baud rate of 9600. How you can? Because we are having the frequency. So frequency that is we are having after the URT is 28000, 28800. Okay, so we will try to divide the frequency with the baud rate. So for example, if I'm saying कि अगर मेरे को 9600 लाना है, तो 9600 मतलब मैंने कहा कि मैं अगर इसको 28800 को अगर मैं x से डिवाइड करूं कि मेरी 9600 आ जाए, so what is the value of x? Can anybody tell me what is the value of x now? What is the value of x? X is 3. X is 3. Okay, so now this is clear. आगे चलें क्या? ये मेरी बॉर्ड है ना? ये मेरी बॉर्ड रेट है. मैंने कहा कि मेरे को 9600 बॉर्ड रेट जनरेट करना है ये फ्रीक्वेंसी को यूज करके. तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी है. तो अगर मैं इसको अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो वो 9600 आता है. तो ये 3 क्या हुआ? ये 3 मेरा एक पैरामीटर हुआ जिसको मुझे कहीं ना कहीं लोड करना पड़ेगा. अब अपन आते हैं एक बार फिर से टाइमर 1 पे. टाइमर 1 बताएगा क्या होता है टाइमर 1? टाइमर 1, if I'm saying timer 1, and especially for baud rate generation, I told you that the timer 1 is hardwired with the UART, and especially it will run in the mode 2. So mode 2, you know what is mode 2? Mode 2 is 8-bit timer with auto reload. याद आया? तो उसमें कुछ ऐसा फिगर था, ये आपका क्रिस्टल है ना. This crystal is further, the frequency is divided by 12. So this is 12. So this frequency is going to your TL1, and this TL1 is connected with the TH1. So finally अपन ने देखा था कि जो मेरा काउंट जो मेरे को लोड करना होता था वो मेरे को कहाँ करना पड़ता था. वो काउंट मेरे को लोड करना पड़ता था TH1 में, और TH1 वो TL1 को सप्लाई करता था. तो यहाँ पर मेरा TF1 है. So this was the timer circuitry. So now come to the point on here. अभी जो अपन ने देखा, मतलब ये अगर मैं कहूँ कि ये मेरा 8-bit टाइमर है, so come to the next mode 2. This is 8-bit timer. मैक्सिमम वैल्यू काउंट की क्या होगी? मैक्सिमम काउंट वैल्यू, एनीबडी? 8-bit टाइमर के लिए मैक्सिमम काउंट वैल्यू कितनी है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर. ओके, आप मेरे को ये बताओ कि ये जो मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 8-bit की इन द हेक्साडेसिमल? FFH. वेरी गुड. अब फिर से आते हैं अपन, ये वाला जो कैलकुलेशन अपन ने किया था, यहाँ पर आ रही है x की वैल्यू 3. x की वैल्यू 3 आ रही है, तो मान लो सपोज 9600 बॉट के लिए मैंने यहाँ पे क्या था कि जो मेरी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरी 9600 बॉड आती है ना. मैंने कहा कि मेरा जो मैक्सिमम काउंट है वो है FF. तो अगर मैं इसको मैं 3 मैक्सिमम काउंट से 3 कम करूं तो ये हो जाएगा FF, FE और FD, है ना.
तो मैक्सिमम अगर मैं यहाँ से करूं, मतलब 3 माइनस करूं इसमें, तो ये कहाँ आके रुकता है, कहाँ आके रुकता है, एफडी पे। तो मैं इसको ऐसे डिक्रीज कर रहा हूँ, मैं 3 पीछे गया इसके, तो यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू होगी, मतलब 3 ना होते हुए, क्योंकि मैं इस साइड से जा रहा हूँ, माइनस साइड से जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू होगी -3। सो दिस इज द रियल वैल्यू दैट वी हैव टू लोड इनटू द टी मोड सर्किटरी। तो टी मोड अगर मेरे को टाइमर मोड अगर यहाँ पर सेट करना है, या मेरे को कोई वैल्यू अगर सेट करना है, तो मैं अब आगे ये 2 बताऊंगा। ही का महीना, हाँ जी, 2 ही का महीना, 3 के इंस्टेड एफसी होना चाहिए था। नहीं नहीं, यहाँ से चालू करो ना, एफ एफ को भी काउंट करो, एफ एफ, ओके ओके ठीक है। एफ ई और एफ डी, तो फाइनली यहाँ आके रुकेगा। मैं एक एग्जांपल और करवाता हूँ, आप इसको करो। आप मेरे को ये बताओ कि ये जो मेरे को अगर 2400 बॉट जनरेट करना है, अब आप बताओ इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 12। 12, वेरी गुड। तो 28800 divided by the 12, so it will be something like 2400। ओके, सो अगर मैं फिर से कहूं कि दैट माय मैक्सिमम काउंट वैल्यू इज एफ एफ, तो एफ एफ से मेरे को -12 करना है, मतलब इसे मैं -12 करूंगा, तो मैं 12 पीछे जाऊंगा इसके, तो कितना आएगा हेक्साडेसिमल में? F4H। F4H। सो करेक्ट आंसर इज दैट F4H। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो आप निकाल रहे हो, जैसे मान लो आपने कहा कि ये बॉड रेट सेट करना है, जैसे यहाँ -3, तो -3 के लिए मेरा ये आया FD, है ना, और इसके बाद मैंने कहा कि ये -12 के लिए आया मेरा F4H। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बॉड जनरेट करना है, कोई बताएगा इस सर्किटरी में क्या होगा, क्योंकि बॉड जनरेट करना है ना, इसको क्या करेंगे? Any idea for that? Any idea? Actually, this value is actually count value. So this is the count value. Count value for what? Count value to generate this bot. Okay, ये अगर ये मेरे को जनरेट करना है, तो ये काउंट वैल्यू आपको लोड करनी पड़ेगी। अब आपने देखा, पिछली बार अपन ने देखा था टाइमर में कि इसमें से कौन लोड कर, किसको लोड करते हैं हम, TL1 को कि TH1 को? इसमें से किसको लोड करते हैं? Why it is called as a auto reload? We will load this value into TH1. So we will load this FD into this one. This FD value will be copied from here to this one, TL1, and finally it will start to count with this clock frequency। मतलब ये आपका टाइमर रन होने लग जाएगा। अब जैसे ये FF पे पहुंचा, तो FF से फिर से रिसेट होगा, फिर से ये FD वैल्यू यहाँ से पिकअप करेगा, और फिर से ये 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो सिर्फ -3 का इफेक्ट आ रहा है, तो आपकी अल्टीमेटली जो बॉड रेट जनरेट होगी वो एक्चुअली यहाँ पे जनरेट होगी 9600। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे करना है, तो एक्चुअली दिस इज द value of count, okay, that you have to load into the TH1 of timer 1। okay, is this point is clear? This point is clear to all of you? So this is the one of the part that should be remember कि जब भी हमको टाइमर सेक्शन अगर वो करना है, तो हम क्या करेंगे, टाइमर सेक्शन के लिए हम ये इसको यूज करेंगे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? यस। तो अब आपने देखा कि ये जो यूज कर रहे हैं, तो हमको इसके लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा, कोई बताएगा? जब भी हम ये यूज कर रहे हैं, तो हमें टाइमर को रन करना पड़ेगा। तो टाइमर को रन करने के लिए, टाइमर में अपन ने देखा था कि जब हम टाइमर को सेट करते हैं, तो हमको यहाँ पर एक्चुअली टाइमर 1 यूज हो रहा है ना। तो क्या यूज करना पड़ेगा? अगर हम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की बात करें, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, SFR, तो कौन कौन से SFR हमें यूज करने पड़ेंगे? The first SFR that we have to use on here is that your T mod। okay, so can you please tell me what is the value of T mod for this case? What is the value of T mod for this case? And then finally we have to load the value of TH1. There is one instruction for that one, and finally we have to load the we have to set the
TR1। तो ये 3 चीजें हमको ये करनी पड़ेगी। तो इस केस में अगर मैं, कोई बताएगा यहाँ पे tmod की वैल्यू क्या होगी, क्या लोड करेंगे? इफ आई एम राइटिंग द इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक दिस वन, मूव tmod, इसमें क्या लोड करें हम कि चलने लगे? मतलब टाइमर 1 मेरे को मोड 2 में चाहिए, बताओ। टाइमर 1 मोड 2 में चाहिए, क्वेश्चन ये है। मेरे को T1 चाहिए और वो मोड 2 चाहिए। जरा बिट सेट करो इसकी, फटाफट आंसर दो भाई, ऐसे अपन करेंगे तो अपने पास टाइम कम है। व्हाट इज द आंसर फॉर दैट? 20H। वेरी गुड, 20H। अभी किसने कहा वो तो रिकॉर्डिंग में पता चली जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज 20H। एंड TH1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TH1 वी विल लोड इनटू दिस वन? ओके, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन पूरा ऐसा हो जाएगा 20H, है ना। दूसरा एक और चीज है कि अगर आप इसमें इसको ऐसे भी लोड कर सकते हैं कि TH1, तो TH1 अपन ने देखा कि वो जो 9600 वॉट के लिए कितना आ रहा था मेरा। तो डेसिमल में अगर मेरे को लोड करना है तो मैं यहाँ पे -3 भी कर सकता हूँ, और हेक्साडेसिमल में करना है तो इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको आप FD भी लिख सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ये मैंने डेसिमल में लिखा इसलिए ऐसा है। और यू नो दैट इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेट बी TR1, है ना, ये आपका कंट्रोल वर्ड में रहता है उसका। और जब मेरे को इसको स्टॉप करना पड़ेगा तो वी विल राइट डाउन CLR TR1। तो ये तो कुछ मैंने इंस्ट्रक्शन बताए कि आप टाइमर को कैसे रन कर सकते हो और बॉड रेट कैसे जनरेट होगी। तो अभी ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अभी अभी अपना पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो सिर्फ अपने टाइमर को हमने रन किया है। अभी सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो सीरियल कम्युनिकेशन जब भी करते हैं, यू नो दैट we will require the two type of register into this one for serial communication. In 8051, the first one is called as a serial buffer. This serial buffer, which is actually designated with a name, is called SBUF. The size of this SBUF is 8-bit register. Okay, and this is programmable. Another thing is that it is programmable. What do you mean by the programmable? Is that it's having the instruction that you can use by, with the help of the instruction you can load the value into the SBUF. So the condition says that, for example, I want to display something or I want to, suppose there is a letter S is there, there is a character, and I want to load this character into this SBUF. So the instruction for that one is that I will write down move SBUF hash, and जिसको हमें यूज करना है, जिसको हमें स्टोर करना है, तो ये यहाँ पे इस तरह से स्टोर कर देंगे। तो आपकी ये वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो गई। तो SBUF में क्या हो गया? दिस S will be loaded with the this 8-bit register which is having the name of SBUF. Finally, we can load this one, और there is another type of thing is that ये directly SBUF में चला गया। अगर आपके पास accumulator में है तो accumulator में आप directly SBUF में आप इसको shift कर सकते हैं by using this instruction. So the value of A will be loaded into the SBUF. So these are the few instructions that I am saying. That we can do the reverse one also, is that if you are having this one move A comma SBUF, so reverse is also possible. Is it clear? So don't compare, मतलब दो इनको आपस में अब मिक्स मत करो। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि जैसे मान लो यहाँ पर ये एस मेरा है, ये SBUF में चला गया, तो what will happen? So in the case of that, for a byte data to be transferred via the TXD line, it must be placed. मतलब जैसे मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है, this is my 8051 microcontroller, and there is a one line is called as a TXD. अब ये डाटा मान लो मेरे को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए कंसिडरेशन ये है कि आपका जो ये डाटा है ये SBUF में होना जरूरी है। मतलब TXD लाइन इसको कहां से पिकअप करेगी? SBUF से। तो SBUF should be loaded with the this character. Okay, and finally it is transmitted on this one. On the other hand, if you are having
one line, the reverse line is also possible, that if you are receiving some data on this line, तो यहाँ से तो ट्रांसमिट हो जाएगा. मान लो एस बफ में एस है, तो यहाँ पर ये एस जो है यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा इस डायरेक्शन में. और मान लो उधर से अगर मान लो वाई आ रहा है, एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि उधर से वाई आ रहा है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ये एस बफ पहले एम्प्टी होना चाहिए. नहीं तो अगर एस भी ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है और ये अवेलेबल है, तो इसके लिए आप इसको पहले क्लियर कर सकते हो और फिर ये वाई इसमें आप लोड कर सकते हैं. सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट आपका जो TXD और RXD लाइन है ऑफ 8051, that should be connected, that are connected with the SBUF. So whatever the data you are transmitting, this go through the SBUF, or whatever data you are receiving, it will come to the SBUF. Okay, but apart from that, ये तो हुई बफर की बात, but we should control the serial communication. So for controlling the serial communication, we are having the another type of register is that, and that register is called as a SCON, which is called as a serial control. Okay, so the full name is called as a serial control. So this serial control is having 8-bit control word type format, and this control word is just like this. So the first bit is called as a SM0. Another one, this is 0. I don't think it is O. It is SM1. Another one is serial mode 2. Okay. Another one is called as the REN. Another one is called as a TV8. Another one is called as a RB8, and apart from that, there are two interrupts are there, which are called the TI and RI. Okay, so actually these two bits will define the modes of the serial communication. Okay, so these are is called as a mode definer, we can say. So if suppose these are having the combination just like 00, 01, 10, like this one. So according to this, the modes are actually defined. I will tell you. This is called this SM2 will be used for the multiprocessor system. So first we'll consider पहले इसको खत्म करते हैं 10 and 0. So this is called the serial mode 0. Okay, this is called serial mode 1. Now it's very important thing is that in the case of this one is that normally जो हम सबसे ज्यादा प्रिफर करते हैं, मतलब आप सीरियल कम्युनिकेशन जब भी हम करवाते हैं तो हम सिर्फ मोड 1 ही यूज करते हैं. अब जब ये मोड 1 को यूज करते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसमें आप 8-bit डाटा एट वन टाइम यू कैन ट्रांसमिट. सो द थिंग इज दैट you can transmit the 8-bit data, and there is a one start stop bit is there. So one start bit is there and one stop bit is there. Okay, so this is the characteristic of this one. Apart from that, we are having the another type of thing is that this is called serial mode 2 and serial mode 3. अपन इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये होता क्या है असल में. बट मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका सीरियल मोड 1 है, तो आप जब भी इसको यूज करो तो मैक्सिमम केसेस में आप इसको इसमें यूज करो. ओके, अब ये जो SM2 होता है, SM2 इज एक्चुअली यूज फॉर मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी. मीन्स if this bit is set as a 1, means you are using this serial communication for multiprocessor. The concept of the multiprocessor is that there is a more than one microcontroller is available for the if we are using some computation. और कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट है कि मान लो आप एक से ज्यादा जो है वो माइक्रो कंट्रोलर अगर आप यूज कर रहे हो, तो उस केस में आप ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आप यूज करते हो.
सो बाय डिफॉल्ट अगर आप सिंगल प्रोसेसर अगर आप यूज कर रहे हो, या वी कैन से सिंगल माइक्रो कंट्रोलर आप यूज कर रहे हो, सो इन दिस केस यू कैन सेट द SM2 एज 0. ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया उसमें अगर मान लो मेरे को इसको यूज करना है मोड 1 में, तो क्या हो गया अभी तक, ये मान लो सिंगल माइक्रो प्रोसेसर है तो ये हो गया मेरा 0101 और ये बिट मेरी हो गई 0. ओके, तो ये हो गया इसका मोड 1 और ये बिट शो कर रहा है मेरी दैट सिंगल प्रोसेसर. ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? So the one next bit is REN. So what is REN? So REN bit actually, the full form of this REN bit is receive enable. So as the name is saying that it is actually on the receiver function of this UART. So when this bit is high, means when this bit is high, when I say 1 or it is high, तो रिसीव कर रहे हो, जैसे मान लो अगर आप रिसीव कर रहे हैं, आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, तो रिसीव कौन सी लाइन पे करेंगे? ऑब्वियसली मैं RxD लाइन पे रिसीव करूंगा. तो RxD लाइन को मेरे को जब इनेबल करना है, तो मतलब ये बीट अगर मेरी 1 है तो जो भी डाटा अगर मैं यहाँ से आ रहा है RxD लाइन पे, मान लो कुछ आ रहा है, मान लो एस आ रहा है, मान लो, है ना, ये एस आ रहा है, मेरे को रिसीव करना है, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि मेरा REN बीट जब तक मेरा 1 नहीं होगा तब तक मैं रिसीव नहीं होगा. सो इफ REN इज 1, S is received. And where this S will be stored? It will be stored into the buffer. And that buffer, the name of that buffer is actually called as a S buffer. On the other hand, if REN value is 0, so you can say your RxD line is totally disabled, no receiving facility will be available. So I am saying no receiving. Correct? Now, on the other hand, if I exclude the 2-bit TB8 and RB8 for the next few purpose, so the next one is called as a RINTI, because अपन को एक प्रोग्राम देखना है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ. So next bit is called as a TI. The TI stands for transmit interrupt. कल मैंने कुछ आपको बताया था, आप इसको थोड़ा सा देखो, मैं इसको कॉपी करता हूँ. Yes, copy of it. Yes. Again come to the same point. क्या पर्पस था इसका, कोई बताएगा? ये एक्चुअली एक असिंक्रोनस फ्रेम का बिट फॉर्मेट था, तो जिसमें सबसे पहले अगर मेरे को अगर कोई बीट अगर ट्रांसमिट करना है, तो मैं जो रिसीवर है उसको सबसे पहले मार्क बिट सेंड करूंगा. तो जैसे ही मार्क बिट आएगा तो वो रिसीवर अलर्ट हो जाएगा कि अब कोई डाटा आने वाला है. स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम उसको कैसे पता चलता है? ये स्टार्ट बिट होती है, तो उसको वो नेग्लेक्ट कर देता है कि आपका जो डाटा है वो डाटा, मान लो यहाँ पे आपका 8 बिट डाटा है या 5 बिट डाटा है, तो ये आपका डाटा ब्लॉक है. तो ये डाटा ब्लॉक हुआ, उसके बाद में ये स्टॉप बिट हुआ, आपका स्पेस हुआ. तो ये कल के डिस्कशन के बाद अपन ने देखा कि ये टीआई क्या रोल प्ले करेगा. तो मान लो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर 8051. अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. तो मान लो इसने कोई ट्रांसमिट किया, तो ट्रांसमिट करने के लिए ऑब्वियसली ये कौन सी लाइन यूज करेगा? टीएक्सडी लाइन. तो टीएक्सडी लाइन के ऊपर इसने कोई फ्रेम ट्रांसमिट की, और फ्रेम ट्रांसमिट करने के बाद ये स्पेस आया मान लो,
क्योंकि इसने पूरी फ्रेम ये ट्रांसमिट कर दी इस तरह से, तो ये स्पेस आ गया। तो स्पेस क्या शो करेगा, स्पेस क्या शो करेगा, मतलब ये बीट इस डायरेक्शन, मतलब ये पूरी फ्रेम इस डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई फ्रेम यहाँ पे ट्रांसमिट कर दी है, और आपकी पूरी फ्रेम अगर ट्रांसमिट हो गई है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी ये है कि अगेन यू कैन रेज दिस TI फ्लैग, मतलब if after the complete transmission, if this TI flag is raised as high, if it is set, it is the, what is the meaning of this one, if this TI is set, so TI said that कि आप कोई next frame अब transmit कर सकते हैं, okay, so it raises the TI flag to indicate that it is ready to transmit the another byte. So first byte we have already transmitted. If the TI flag is raised high, तो मतलब आप अब नेक्स्ट वाला डाटा जो है आप ट्रांसमिट कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट वाले डाटा को ट्रांसमिट करने से पहले आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि आपका ये मार्क स्टार्ट और ये सारा फ्रेम बना के आप नेक्स्ट बिट डाटा यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसमिशन के लिए। और सेम का सेम अगर कॉन्सेप्ट अगर अपन यूज करें RI फ्लैग के लिए, तो RI मतलब क्या, रिसीव इनेबल या रिसीव इंटरप्ट। ओके, सो फिर से ये मैं कॉपी करता हूँ। ओके ओके, so in the case of this one, what is going on, that for example this is your 8051 microcontroller, and on the RxD line, suppose this is my RxD line, my frame is coming like that one. So this is my first frame. If I'm saying this is my first frame that is coming on here, so this first frame is already indicated by this start and stop bit. So this first frame will be received if this RI interrupt is set, and on the other hand this first frame will be stored into the SBUF. ओके, ये जैसे मान लो यहाँ पे गया, तो ये स्टोर कहाँ होगा, ये इसके अंदर यहाँ पर जो SBUF लगा हुआ है वो उस पर स्टोर होगा, दिस विल बी स्टोर्ड इनटू द SBUF। ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट ऑन हियर, ये फ्रेम अगर इसने रिसीव कर ली, और रिसीव करने के बाद में अगर इसने RI को, जो आपका RI फ्लैग है उसको अगर 1 सेट कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये नेक्स्ट फ्रेम को रिसीव करने के लिए रेडी है। ओके, सो मींस वी कैन से इफ दिस कंडीशन इज फुलफिलिंग, वी कैन से रेडी टू रिसीव नेक्स्ट फ्रेम। Okay, so in this way, the RI flag, RI bit indicate that a byte has been received and should be picked up by before it is lost. Okay, so ये actually जैसे यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम आई, ये फर्स्ट फ्रेम आपकी SBUF में गई, SBUF में जाने के बाद में मतलब आपको RI फ्लैग यहाँ पर हाई करना पड़ेगा। हाई करने के बाद ये बताना पड़ेगा कि आपके पास पहली फ्रेम आ गई है और इसको आप रिसीव कर लो, कहीं पर आपको प्रोसेसिंग करना है तो आप उस पर यूज कर लो। यूज करने के बाद में फिर आप RI फ्लैग को अगर 1 करते हो, तो सामने वाली डिवाइस जो है आपको वो ये समझती है कि आप जो है वो नेक्स्ट फ्रेम रिसीव करने के लिए तैयार हो, और फिर जो है उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई एम कमिंग टू द वन क्वेश्चन हियर इज दैट नाउ आई वांट टू transfer, for example this is my 8051, this is the question. okay, अब मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरे को एस को ट्रांसमिट करना है सीरियली, तो ऑब्वियसली वो लाइन ऐसे होगा। ओके, तो ये मेरे को TXD लाइन पे इसको ट्रांसमिट करना है, मतलब एस ऐसा जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा, इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, any idea? Please write down the program for that one. What will happen that first of all we have to set the timer. तो टाइमर के लिए हम क्या करते हैं, तो टाइमर को सबसे पहले मुझको टाइमर 1 यूज करना है, और टाइमर 1 को यूज करना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टी मोड को अपन यूज करेंगे। तो टी मोड अपन ने देखा था कि टाइमर 1 के लिए अपन यूज करते हैं, और उसको ऑटो रिलोड मोड में अगर यूज करते हैं मोड 2 में, तो हमारा जो ये जो स्ट्रिंग आती है वो क्या आती है यहाँ पर, दैट इज द 20H, अभी अपन ने देखा था। उसके बाद में अगर मान लो मेरे को जो बॉड रेट है वो बॉड रेट अगर सेट करना है, या काउंट की वैल्यू अगर मेरी बॉड रेट जो है, हाँ ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है अगर बॉड रेट नहीं दिया हुआ है,
तो मान लो मेरे को 9600 बॉड पे इसको ट्रांसमिट करना है, तो कैसे करेंगे बताओ मुझे, बताइए, आप लोग बताइए। TH1 में FDH लोड कर देंगे। वेरी गुड। या तो FDH लोड कर दो, या फिर दोनों सही है ये, या फिर आप -3 लोड कर दो। हेश, ध्यान रखना -3 लोड करना है, 3 मत लोड कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, और बताओ इसके बाद। अब जो पॉसिबिलिटी होती है वो इसकी होती है, इसकी वैल्यू बताओ मुझे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है। तो मेरा ये 8 बिट का है, जो कैरेक्टर में को सेट करना है ये मेरा 8 बिट का है, क्योंकि मैं इसको आस्की में सेंड करूंगा। तो आस्की में 8 बिट कैरेक्टर है, 1 स्टॉप बिट होना चाहिए, ठीक है, और REN इनेबल्ड होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे इसको, REN इनेबल्ड होगा तो क्या यूज होगा इसका, बताओ। ऑब्वियसली मैं मोड 1 यूज करूंगा, तो ये 0 1 सिंगल प्रोसेसर में यूज करूंगा और REN इनेबल्ड होगा। तो क्या वैल्यू हो जाएगी अगर मैं बाय डिफॉल्ट सबको, अभी इनको सबको 0 मान के चलूं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं मान लो इसको मैं मोड 1 में यूज करता हूँ, तो ये 0 1 हो गया। मैं सिंगल माइक्रो कंट्रोलर को यूज कर रहा हूँ तो ये भी 0 हो गया। REN इनेबल्ड होना चाहिए, तो REN ये, और बाकी वैल्यू को मैं 0 0 0 रखता हूँ। तो ये क्या हो गया मेरा जो एक्चुअल काउंट हो गया, ये हो गया मेरा 50, है ना। तो आई विल लोड डाउन दिस वैल्यू, I will load down this value. From here, I have to write down my move. What is the register that I will use for this one? So the value of register should be just like उसमें tcon था, मैं यहाँ पे ascon use करूंगा. So the value of ascon should be loaded with the 50H. So your ascon will be programmed like this one is that जैसे इसके अंदर 50 लोड होगा, तो एस्कॉन अंडरस्टैंड कर लेगा सीरियल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म को, कि हमको मोड 1 यूज करना है, सिंगल माइक्रो कंट्रोलर यूज करना है, और आपको REN इनेबल्ड करना है। इसके बाद अब मुझे जो अगला जो प्रोसेसिंग करना है वो ये करना है कि जो मेरा जो ये जो TR1 है, मतलब मेरे को टाइमर को रन करना है, तो टाइमर को रन करने के लिए आई विल यूज सेट B TR1. So finally my baud rate will be start to generate on here. Okay. अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब कोई बताएगा मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी इतने से क्या हुआ, चलो बताओ, जो ये प्रोसीजर आपने फॉलो किया उससे क्या हुआ, एनीबॉडी, वन बाय वन अपन देखते हैं। बताओ, ये 4 इंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं। टाइमर मोड सेट हुआ उसमें, हाँ, टाइमर ऑटो मोड। रिलोड मोड 1। हाँ, मतलब ये 20 समझ में आया कि नहीं, ये 20 का क्या मतलब हुआ, 20 क्या हुआ, टी मोड के अंदर 20 क्या हुआ, है ना। तो 20 का मतलब ये होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो सबसे पहले तो मेरे को टाइमर 1 यूज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइमर 1 मोड 2 हो गया वो। और मोड 2 ऑटो रिलोड हो गया, तो आप इसको निकाल के देखोगे तो ये 20 आएगा। बाकी जो क्वेश्चन मार्क फेसेस है भाई जो सुन रहे हैं सिर्फ, वो प्लीज देखो उसको, एक मिनट ना। तो सॉल्व किया क्या इसको, ओके। अब मुझे बताओ TH1-3, ये तो पता चली गया आपका। तो ये मेरी बॉड रेट जनरेट करना है, मेरे को 9600 बॉड जनरेट करना है, तो ये इसके लिए हो गया। आगे बताओ, ये आपको समझ में आ ही गया 50 क्यों हमने लोड किया है, क्योंकि ये हमने लोड किया है क्योंकि मेरे को जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो मेरे को मोड 1 में करना है, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर के लिए, मतलब सिंगल माइक्रो कंट्रोलर, और दूसरी जो बीट थी मेरी REN 1 होना चाहिए।
ठीक है। अब इसके बाद मैंने टाइमर को रन कर दिया तो आपकी बॉड रेट स्टार्ट हो गई जनरेट होना। अब उसके बाद आप मुझे बताओ कि आप क्या करेंगे। और मेन पर्पस इज दैट आई हैव टू ट्रांसमिट दिस एस ऑन द txd line. So what should I do? What should I do? First of all, I will load this one move as buff with a value s, है ना। मैंने s से इसको लोड कर दिया क्योंकि ये एक तरह का ASCII कैरेक्टर है, तो मैंने s buff यहाँ पे लोड कर दिया, तो माय बफर विल बी हैविंग ए वैल्यू ऑफ s. सो नाउ ये वैल्यू मैंने यहाँ पर जो बफर है, मतलब ये जो बफर है s buff, आई हैव पुट दिस s buff here. सो यहाँ पे इसके पास में अभी जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी, वो है मेरी s. अब मुझे इसको भेजना है, तो भेजना है मतलब कब तक सेंड करेंगे इसको, कब तक सेट करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे करूं तो ये जो है ये TH1 जो है वो लोड हो जाएगा। तो TH1 किस वैल्यू से लोड हो रहा है, अगर अपन इसको ये देखें एक बार, तो एक बार इसको देखें कि जैसे मान लो ये इसका इंटरनल ऑपरेशन क्या चल रहा है। ये आपका क्रिस्टल था, दिस वाज योर क्रिस्टल एंड दिस इज अगेन डिवाइडेड बाय। अपन टाइमर सेक्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर ये देखें तो अपन ने यहाँ पर ये मेरा TL1 है और ये मेरा TH1 है। ओके, एंड दिस इज माय TF1। अब मुझे जरा एक चीज बताओ, ये मैंने लोड किया था, आई हैव लोडेड द वैल्यू, पहले अपन इसको कंप्लीट कर दें। इफ आई एम राइटिंग हियर FD will be clear, FD in the hexadecimal. So this FD is equivalent to minus of 3. क्लियर। अब आप आगे सोचो कि ये अगर माइनस ऑफ 3 है तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे माइनस ऑफ 3 का। तो अगर ये -3 है तो क्या होगा बताओ। मतलब ये FD सबसे पहले मेरे को TH1 लोड करना पड़ेगा। जब मैं TH1 को लोड करता हूं तो ये वैल्यू जो है FD यहाँ पे भी लोड होगी, ये वैल्यू मेरी FD यहाँ पे भी लोड होगी। ओके, अब ये FD जो है यहाँ से कंटिन्यूसली इसको क्लॉक मिल रही है। जैसे मान लो एक क्लॉक इसको ये मिली लाइक दिस वन, तो ये कंप्लीट एक साइकिल हो गया। तो जब इसको एक साइकिल मिला तो ये FD, जैसे मान लो मैंने बताया था आपको कि FD फिर से किसकी तरफ, क्योंकि ये तो अप काउंटर है ना, तो FD विल बी मूव टुवर्ड्स द FE. So it will take a time. How much time it will take? It will take a time, so I think so that it is 1.805 microsecond. Okay. After this, it will be go to, in the next cycle it will be reached to FFH. Okay, in a 1.805 microsecond. Again, when it will be increment by 1, so it will be having the value of 00h. When it will be having the value of 00h, this value will be set as a 1. Okay, if this value is set as a 1, what will happen? मतलब ये कब तक चलेगा, मतलब आपका एस का ट्रांसमिशन कब तक चलेगा। एस का ट्रांसमिशन तब तक चलेगा जब तक कि ये TF1 जो है वो सेट नहीं हो जाता है। जैसे ही आपका TF1 सेट होगा आप टाइमर को स्टॉप कर सकते हो। सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हियर। देखता हूँ कि कौन कितना इंटेलिजेंट है कि अब ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर मेरे को प्रोग्राम में बताना है, कैसे करेंगे इसको। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा, दूसरा चीज मेरे को बताओ कि ये जो वैल्यू है, जैसे मान लो ये 0 0 हो गया मान लो, इसके बाद 0 0 होने के बाद इसके बाद में नेक्स्ट काउंट कौन सा जाएगा, क्या 1 आ जाएगा क्या इसके ऊपर 0 1, ये 0 0 हो गया ना, तो 0 0 हो गया मतलब क्या, ये 0 0 हुआ, TF1 यहाँ पर 1 हुआ, तो फिर से इसके अंदर FD लोड हो जाएगा। बात आई समझ में, ऐसा नहीं कि वो 0 1 पे चला जाएगा, फिर से FD लोड होगा, फिर से एक काउंट से जाएगा FD FE FF, फिर से 0 0, फिर से FD FE FF।
ये कंटिन्यूसली लूप चलता रहेगा जब तक कि आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो से इसको दिखाऊंगा भी सही अभी। नाउ टेल मी नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर दैट? वी हैव लोडेड द वैल्यू ऑफ दिस एस इनटू द दिस वन। सो जब भी हम इसका करते हैं तो हमको इसको जो भी कैरेक्टर हमको इसको लोड करना होता है, वी विल यूज द डबल बेस एस इनटू दिस वन। नाउ आपको याद है हमने किया था, हमने इसको ऑब्जर्व किया था टाइमर की प्रोग्रामिंग में कि ये तब तक होना चाहिए जब तक कि आपका TF1 जो बीट है, TF1 मतलब जो सर JNB TF1 कॉमा एक लेबल लगा देंगे और लेबल उसी के आगे। हाँ है ना, तो ये तब तक होगा नहीं। सबसे पहले तो हमको ये टाइमर को यूज करना पड़ेगा। तो ये टाइमर को मान लो मैंने एक लेबल लगाया, जैसे मान लो L1 यूज किया मैंने लेबल, तो ये जब तक यूज करेंगे तब तक कि जैसे मान लो इसको मेरे को ट्रांसमिट करना है तो मेरे को ट्रांसमिट इनेबल करना पड़ेगा। तो ट्रांसमिट इंटरप्ट को मैंने जब तक ये ट्रांसमिट इनेबल बीट आपकी 1 नहीं होती तब तक ये लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और उसके बाद जैसे मेरे को इसको स्टॉप करना है तो आई विल से आई विल यूज दिस TI। मेरे को स्टॉप करने के लिए TI को स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मैं सीरियल कम्युनिकेशन वहां पर ने टाइमर के लिए देखा था, यहाँ पर ये सीरियल कम्युनिकेशन वाला फ्लैग जो है वो यूज करना पड़ेगा। एंड फाइनली ये प्रोग्राम जब तक चलेगा जब तक कि आप इसको नहीं चाहेंगे, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप में चलेगा। ओके, सो यू गॉट दिस वन, यू गॉट दिस वन। अब कई लोगों के मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा कि वहां पे तो अपन ने TF1 बीट को ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ पर मैं TI बीट को, TI बीट आपकी 1 नहीं होगी तब तक आपकी, क्योंकि TI बीट को 1 करने का मतलब यही है कि ये जो TI बीट थी, अभी कहाँ थी वो TI बीट, ये रही। ये TI बीट ये शो करेगी कि जब तक मैं उसको 1 नहीं करूंगा, मतलब ट्रांसमिट इंटरप्ट बीट शुड बी 1 टू ट्रांसमिट दैट कैरेक्टर। ओके, तो जब तक वो बीट 1 नहीं होगी तब तक वो लूप चलता रहेगा। और जैसे वो बीट ट्रांसमिट हुई आप जो है उसको क्लियर कर सकते हो TI को, तो वो बीट ट्रांसमिट होना स्टॉप हो जाएगी। अब जैसे मान लो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम दूं आपको, आप मेरे को बताओ, मैं अगर एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दूं कि मेरे को वन बाय वन मुझे ये ट्रांसमिट करना है, मतलब पहले SGSITS ये ट्रांसमिट करवाना है। तो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे? एक एक बिट को हमको यूज करना पड़ेगा। चलो बताओ लॉजिक। सबसे पहले हमको टाइमर को सेट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, कैसे करेंगे हम? 9600 बॉट पे ही करना है इसको। अब बताओ मुझे कैसे करेंगे, इंस्ट्रक्शंस बताओ आपके पास में, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने बताया आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइमर को प्रोग्राम करेंगे। तो टाइमर को प्रोग्राम करने के लिए वी विल यूज मूव tmod। क्या वैल्यू यूज करें tmod की? बाय डिफॉल्ट दिस इज 20H। ओके, फिर से वो आ गया, बॉड रेट सेट करना है, तो यू कैन थिंक अबाउट दैट। TH1 वैल्यू should be set as -3। ओके, अब SCON सीरियल कॉन को प्रोग्राम करना है, तो सीरियल कॉन में हम क्या लोड करेंगे, मूव SCON कामा #50H, है ना। अभी तक क्या पर्पस हुआ, चलो बताओ, इन 3 इंस्ट्रक्शन को लिखने का क्या पर्पस हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बी ए ग्रुप पीपल, प्लीज टेल मी समथिंग, आई विल बी मच मोर हैप्पी विथ यू। क्या कर रहा है ये प्रोग्राम? एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ये तो एक सैंपल है। हो सकता है कि मैंने कुछ कंडीशन वहां चेंज कर दी, तो आपको यहाँ पर अगर आपने ये 3 वैल्यू लिख दी तो हो सकता है प्रोग्राम गलत भी हो सकता है आपका, क्योंकि आपने स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, आपने सोचा कि जो क्लास में पढ़ाया वही कर देंगे, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, है ना। ध्यान रखना इन सब चीजों का, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी सी भी चेंजेस अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे दी वहां पे आपको, तो अगर आपने ये वैल्यू लोड करी तो ये शायद हो सकता है गलत भी हो सकता है ना। तो ध्यान रखना इसका। अभी अपन डिफॉल्ट के ऊपर चल रहे हैं, तो डिफॉल्ट, इधर किसी को कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन?
क्लियर हुआ ये? आगे चले। अब बताओ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर दिस, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। भाई इसके लिए आपको टाइमर को रन करना पड़ेगा, तो टाइमर कैसे रन होता है? तो टाइमर को रन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेट किया मैंने TR1, तो मेरा टाइमर रन हो गया। अब टाइमर रन होने गया, मेरे को अब क्या करना है, पहले मैंने एक जो प्रोग्राम लिखा था उसमें मैंने एक ही कैरेक्टर को यूज किया था, अब मुझे अलग अलग कैरेक्टर को यूज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मूव किया मैंने एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर में एक वैल्यू लोड करी मैंने, तो पहला कैरेक्टर मेरा एस है, तो मैंने यहाँ पे डबल ब्रेसेस में लिख दिया एस, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं दूसरा पर्पस यही कि मतलब बार बार जैसे मान लो अगला जी भी लेना है, फिर तीसरा एस लेना है, फिर आई लेना है, फिर टी लेना है, एस लेना है, तो मेरे को हर वैल्यू को मेरे को क्या करना पड़ेगा, बफर में यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लूप भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक सब रूटीन में यूज करूंगा जिसमें बार बार ये जो फंक्शन रिपीटेड हो रहे हैं उसको मैं यूज करूंगा। तो मैंने उसका लेवल रखा L1, तो मैं L1 लेवल वाले सब रूटीन पे जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं हर कैरेक्टर को यहाँ पे लोड करता जाऊंगा, जैसे मान लो मूव ए कॉमा हेश जी, फिर से मैं ये इसको कॉल करूंगा ए कॉल L1, फिर आया मूव ए कॉमा हैश एस, फिर से मैं कॉल करूंगा L1 को, मूव ए कॉमा हैश, मेरा अगला जो है वो है आई, फिर से मैं कॉल करूंगा ए कॉल L1 को, ओके। और अब क्या बच गया मेरा, इसके बाद अगला स्लाइड पे अपन आते हैं। तो ये मेरा हो गया आई तक हो गया, अब मेरा टी और एस और बच गया। तो फिर से अपन करेंगे मूव ए हैश टी, फिर से मैं करूंगा ए कॉल S1, सॉरी L1, जस्ट मिनट, L1, और फिर से मैं करूंगा मूव ए हैश, दिस इज एस, ओके। तो अगेन आई विल कॉल दिस L1 लूप, ओके, ए कॉल L1। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो L1 पे आपका जो सब रूटीन लिखा है वो ऐसा क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि आपको बार बार उसको कॉल करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये रिपीटेड करवाना है, मतलब ये लूप में जैसे मान लो वो स्ट्रिंग जब आपको शो करेगा ना, तो ऐसे शो करेगा SGSITS, फिर से SGSITS, ऐसा मतलब कंटिन्यूसली ऐसे मूव करवाएगा, मतलब वो ऐसे फिर ऐसे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट लाइन आएगी, फिर SGSITS, फिर SGSITS। तो मेरे को ये लूप कंटिन्यूसली करवाना है। तो कंटिन्यूसली करवाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक यहाँ पर जंप लूप लगाना पड़ेगा, दैट एस जंप, एक बार भी करवा सकते हैं हम, एस जंप से वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे को L2, अब ये L2 मेरा कहाँ आएगा, L2 लेवल मेरा कहाँ पे आएगा, जब पे मैंने पहला कैरेक्टर ट्रांसमिट किया था, तो ये मेरा L2 यहाँ पर आएगा, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि बार बार ये जो फंक्शन यूज हो रहा है, ये जो आप L1 लूप यूज कर रहे हो, इस L1 में है क्या, कौन बताएगा, सबसे पहली स्टेप क्या है। अभी तक जो भी डाटा हमने लिया है वो कहाँ लिया है, एक्यूमुलेटर में। ये L1 क्या करेगा, दिस L1 विल ट्राई टू move, that is the data that is in the possession of this accumulator, this will try to move into the buffer, serial buffer। तो पहली स्टेप ये, ओके, ये कब तक करता रहेगा, जब तक कि मेरा ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग जो है वो सेट नहीं होता, ओके। तो ये ट्रांसमिट इंटरप्ट सेट होना जरूरी है। तो ये मैंने कहा कि ये मेरा अगला L3 है, तो मैंने लिखा JNB TI L3, तो ये L3 यहीं पर होगा जब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही मान लो आपका ये सब चीजें होने लगी, तो फिर से आप इसको क्लियर कर सकते हो, क्लियर ट्रांसमिट इनेबल,
और ये लूप जो है आपका, क्योंकि ये सब रूटीन है, सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग एज ए आरईटी। सो आरईटी, तो इसको अपन देखेंगे एक बार कैसे काम करता है ये। जैसे मान लो एस आया है ना, तो एस में यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको जंप किया, क्योंकि मैं एस के लिए मैं ए कॉल L1, तो ये प्रोग्राम आपका सीधा यहाँ जंप करेगा। तो जो आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर मान लो इनिशियली एस है, तो ये वैल्यू दिस वैल्यू विल गो इनटू द एस बफ। अब इसको ट्रांसमिट करने के लिए मुझे ये टी फ्लैग को इनेबल्ड करना पड़ेगा। तो ये टी फ्लैग जब तक इनेबल नहीं होगा, मैं इसी लूप में रहूंगा, इसी लाइन के अंदर रहूंगा। जैसे ही मेरा ये इनेबल हुआ, तो मैं इसको टी फ्लैग को फिर से रिसेट करके आई विल गो टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन मतलब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इस लाइन के ऊपर, है ना। तो अब मेरा फिर से नेक्स्ट यहाँ पे जी जाएगा, और जी जाके वो जी जब तक ट्रांसमिट नहीं होगा जब तक ये चलता रहेगा। तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम जो है आपका चलता रहेगा। तो ये दिस इज वन ऑफ द सैंपल इज दैट यू कैन ट्रांसमिट वन कंटिन्यूअसली स्ट्रिंग बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम। सो यू टू सेंड द दिस ऑपरेशन वन बाय वन। तो अभी के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। आप मैं कल परसों की क्लास में और होगा तो मैं और भी चीजें आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि अपना ये टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है। क्योंकि अभी अपन ने ये जो मोड अपन ने डिस्कस किए थे यहाँ पर, वो मोड अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया नहीं कि ये जो सीरियल मोड 0 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये करता क्या है। तो अभी मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, कल की प्रोग्राम लैब के अंदर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। और टाइमर का भी अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि वो टाइमर कैसे काम करता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।